Hi guys, welcome back to my channel. What the Ayush bhaiya? Yeah, he's so annoying. Ayush bhaiya, yeah, I'm filming something for my YouTube family. You don't want me to retake लेना पड़ेगा. Hi guys, so hope you're doing well. I am not okay. I am sick at this point of time. So November, December is a month where I fall sick. Definitely I'll fall sick like once in a year. And this time period, the month of November and December is the month where I have to get fever. It's like written somewhere that Asta will get fever, like decided in these 2 months. Otherwise, like ऐसे प्रलय आ जाएगा अगर मुझे दो मंथ में फीवर नहीं हुआ. कीपिंग दिस अपार्ट. ओके, ऑलराइट. सो आई एम हियर टू रिकॉर्ड. सी, सेशनल्स आ रहे हैं. मेरी भी 17 नवंबर से सेशनल्स है. आई डोंट नो व्हाई. अब है तो वेलकम बैक टू GL बजाज. दिस इज व्हाट हैपेंस. एक डिस्क्लेमर अभी दे देती हूँ. आई थिंक आई माइट हैव टोल्ड यू बिफोर एज वेल. तो आपके एग्जाम्स वुड फॉल इन सच एरियाज ओनली. फेस्टिव से पहले या बाद में ये एग्जाम्स रखेंगे. डेफिनेटली दे विल बी कीपिंग एग्जाम्स लाइक इन दैट ड्यूरेशन. या तो फिर फेस्टिवल शुरू होने से पहले या मे बी फेस्टिवल खत्म होने से पहले, होली दिवाली हो या एनीथिंग लाइक दैट. सो इट्स नथिंग न्यू और डोंट फील सैड अबाउट इट. और आई थिंक छठ है 18 से. सो छठ इज समथिंग दैट यू नो I've never seen Chhat, and I literally want to, because I don't have friends from Bihar. So this is, I think, festival of like the people who belong from Bihar, and I want to see how Chhat is. कैसा एक लंबा सा procedure होता है. So I want to feel that. I want to be at that friend's place who enjoy this festival, and I want to see what happens at day 1, at day 2, day 3, how like it happens, because this is such a mega festival that takes place. So like I feel bad for those people जिनका exam है and they cannot go home. Second year वाले तो I guess definitely जाएंगे, because who's stopping them? First year वाले आप लोग sessional. So basically I'm here. Everybody was asking कि do you have sessional के papers? Do you have notes? Do you have something that can help us? तो मैं बताऊंगी that only you can help yourself. I am no one to help you out in that. हाँ, कुछ tips दे सकती हूँ what I followed. Again, एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, whatever I followed might work for you or not. That completely depends on you. The procedure that I followed, the tips that I followed for myself would work in the same manner for you is again uncertain. I cannot say that whatever worked for me will work for you as well, right? Every individual is a different person, and every idea or everything that I'll be telling might not fit for these some people, might fit for these some people. So I'm just here to tell you how and what I planned for myself. Actually, I didn't plan anything, but some tips that that will help you out, because now you have time. So I wish to timely put this video up for you, so that whatever time period you have, you can prepare yourself in that. Okay, so okay, so right, so coming to the subjects that you have and what I did at my point of time. Okay, so first thing, coming to stats. स्टैट्स के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी, स्टैट्स की क्लास इज वॉट यू नीड टू फोकस ऑन. सी, सारे सब्जेक्ट्स की क्लास इज समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन. क्लास में इफ यू फोकस इन ऑल द सब्जेक्ट्स, यू आर डन विद द थिंग्स देयर एंड देन. यू डोंट नीड टू रिवाइज, यू डोंट नीड टू मेक नोट्स, क्योंकि अटेंटिव होके सुनना इज ईच एंड एवरीथिंग, राइट? तो स्टैट्स पे फोकस करते हैं. स्टैट्स में I won't say the name of the teacher, but if you have her, you are blessed. She is exceptionally good. Exceptionally good. I say it because I have felt it, the experience. I couldn't resist myself, so I said it out there here in the YouTube कि stats उन्होंने मुझे पढ़ाया. So at times there are subjects, even if you don't like the subject, somebody was saying this to me, even if you don't like the subject, the teacher makes you like that subject more. So I would say for these stats as well, stats is very easy. The only thing that you need to know, get well versed with the formula.
फॉर्मूला ऑन टिप्स याद रख लो. हर फॉर्मूले के 10 टू मिनिमम 5 to 10 टाइप्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो. न्यूमेरिकल्स दैट इज बीइंग टॉट इन द क्लास. सिंपल पूरी स्टैट्स हो जाएगी, एक नंबर नहीं कटेंगे. पूरे नंबर तो किसी के नहीं आते हैं, ठीक है. स्टैट्स का यही है, फॉर्मूले ऑन टिप्स एंड ईच फॉर्मूले से प्रैक्टिस दिस न्यूमेरिकल. एंड ऑल्सो जब आप स्टैट्स की क्लास कर रहे हो तो स्टैट्स में इट इज न्यूमेरिकल बेस्ड, बट देर आर सम थ्योरीज एंड देर आर सम टर्म्स दैट यू नीड टू नो, राइट. तो वेन एवर हूसोएवर इज टीचिंग यू, राइट, आप कीप अ हैबिट ऑफ, ये मैं सिर्फ स्टैट्स की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम सेइंग लाइक फॉर दी ऑल द सब्जेक्ट्स, keep a habit of, even if there's a class where you don't have to write anything, where you don't have to jot down the points or take down the important points, still open your notebook, keep a pen in your hand, whatever word, whatever term you feel that this is something new that is adding on to my dictionary, to adding on to my knowledge, just write it down there and then. Just do it, okay? So stats mein, if the ma'am is or the sir is teaching you anything, numerical is something that you have to practice. But there would be terms that you will come across for the first time, or there would be some terms whose definition need to be known, otherwise that cannot be applied in practical. So just jot down there and then. So it's very important. So ye ho gayi stats ki baat, okay? Coming to accounts, I'm talking about these two subjects pehle, because these are the two subjects that people suffer a lot in. Other subjects are very easy, not to worry about. Accounts की बात कर लेते हैं. Sorry. So accounts is pretty much simple for the people who belong to commerce, and there are times that the account is not simpler for them as well. I don't know why. Maybe they are not good in accounts. Who knows? So for the science people, no need to worry. अभी जो accounts तुम्हारी शुरू हुई होगी is very simple, जिसमें कि if you like give a 5% या 10% भी interest दोगे ना accounts में, तो आ जाएगी. For the initial stage, I'm being very honest. बीच में वो जो ऐसे leisure और पता नहीं क्या क्या आ जाता है, that is like very weird thing. You cannot put your mind even if you want to. But initial stage mein now I don't even remember, because I don't like account, and I didn't even pay attention to that much. So it was, accounts was always has been my the part where I only had this, that मैं pass हो जाऊं. That was all what matters to me for the accounts part. And now I'm done with accounts, hopefully. So like, I don't know. So yeah, accounts for the initial is very good. You need not worry about that, all right? So app में उसको जो terms होंगे, बस वो terms ध्यान से पढ़ लेना. credit, ये सब क्या होता है. So accounts is easy. कैसे बताऊँ मैं कि जो भी अभी पढ़ाया जा रहा है in your class, ठीक है, आप उसे पढ़ो. एंड फॉर द साइंस स्टूडेंट स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहती हूँ, व्हेन यू आर सिटिंग इन द क्लास, राइट, आपको सारे टर्म्स ही नए लगेंगे. अटेंटिव रहना इन अकाउंट्स की क्लास, एंड वेर एवर यू फील कि मुझे ये टर्म समझ नहीं आया है, रेज योर हैंड्स, आस्क योर डाउट्स, आस्क मल्टीपल टाइम्स अबाउट द सेम टर्म, बट आस्क आउट. अगर टर्म्स क्लियर अकाउंट में नहीं हुए, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तो कुछ नहीं आ पाएगा अकाउंट्स में, ठीक है. सो वेन एवर समबडी इज टीचिंग, जस्ट मेक श्योर, अगर आपको नहीं हुआ है क्लियर, स्टैंड अप एंड से दैट मैम एंड सर, प्लीज रिपीट दिस अगैन फॉर मी इन अ सिंपलर लैंग्वेज, और मे बी व्हाटएवर फील्स राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो अकाउंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी, अपने टर्म्स क्लियर रखना. बैलेंस शीट मैच करे या ना करे इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो तो बाद में जाके आएगा. अभी जो पहली इनिशियल चीज है कि क्या क्रेडिट हो रहा है, क्या डेबिट हो रहा है, अभी यही पूछा जाएगा इनिशियल स्टेज में, ठीक है. कौन किसको हमें लाइबिलिटी में रखना है, किसी को कहाँ रखना है. इजी टर्म्स है, डोंट मेस अप, डोंट वरी मच, आराम से हो जाएगा. ऑल राइट, जस्ट बी अटेंटिव. एंड साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बोलना पाऊंगी, मल्टीपल टाइम जस्ट आस्क क्वेश्चन टू योर फैकल्टी टीचर हूसोएवर इज टीचिंग कि ये मुझे टर्म क्लियर नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है. ओके, मैं आप एक इंस्टेंट बताती हूँ ऑफ व्हेन आई वाज इन अकाउंट्स. लाइक मेरा जब पहला टाइम था तो मुझे मैम पढ़ाती थी, so she was there in the class, so I was very confused type of person, and whatever I feel comes up on my face immediately. I cannot hide it. So I was there, and my
friends are from commerce background, from not from science background. Most of my friends are from that. So I was there and ma'am was teaching me. So I was literally like, what's happening? I'm not getting. I don't know which amount is coming, which amount is going. I was reacting as if. So ma'am took hold of my expressions. I think something is wrong with her. So ma'am was like कि उठो आप तो अपना नाम बताओ. मैंने कहा कि मैं मास्टर दिस साइड. मैम कहती आज तक क्या समझ नहीं आया. So that was a point. और यू से कि आई वॉज लकी दैट मैम ने मुझे खुद ही उठा के बोला कि आप मुझे बताओ आपको क्या समझ नहीं आया. बट द सिनेरियो वुड नॉट बी सेम विद यू पीपल. अब मैम सबको या कोई भी सर सबको उठा के नहीं पूछेंगे कि अच्छा आपको समझ नहीं आया. यू हैव टू स्टैंड अप और यू हैव टू यार एक ये मच्छर है ना मुझे परेशान कर रहा है. यू हैव टू स्टैंड अप. Just a second. Okay, so you need to stand up and ask your doubts on your own. So मैम ने मुझे खड़ा किया and then I started saying कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया, ये नहीं आया. So she cleared like 4 or 5 terms immediately there and then of mine. तो वो 4 to 5 terms मेरे उस टाइम पे मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि क्लियर हो गए थे, बट आई गॉट अ आइडिया ऑफ दैट. और सेकेंड क्लास से मैं मतलब मेरा अकाउंट्स में 0 इंटरेस्ट था, मैं इंटरेस्ट के साथ पढ़ने लग गई. सो दैट इज अ थिंग, यू नीड टू कीप योर इंटरेस्ट हाई इन टर्म्स ऑफ अकाउंट, इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स. दिस आई वुड से. डन विद दीज 2 सब्जेक्ट्स. कमिंग टू द बेसिक सब्जेक्ट, पहले मैं मार्केटिंग ले लेती हूँ. मार्केटिंग इज ऑल्सो ईजी, वेरी ईजी. यू जस्ट नीड टू नो द टर्म्स राइटली. अच्छा, मार्केटिंग में यू कैन नॉट कुक एनीथिंग. आप अपने से यू कांट फ्रेम अ स्टोरी, यू कांट फ्रेम एनीथिंग, क्योंकि अगर कोई हायरार्की फॉलो हो रही है, देयर आर सम, अगर कोई 7 P's है या देर आर सम स्टेजेस दैट द थिंग इज हैपनिंग इन, तो आप स्टेजेस तो चेंज नहीं कर सकते हो, राइट? आप किसी के टाइप्स तो नहीं बदल सकते हो, किसी के आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्वैप नहीं कर सकते हो. सो मार्केटिंग में यू कैन नॉट राइट एनीथिंग ऑफ योर ओन. आप इंग्लिश नहीं बना सकते हो, इट्स नॉट इंग्लिश सब्जेक्ट. मार्केटिंग में यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद द टर्म्स, you need to be very clear with the concept, and we have very good teachers of marketing. Like I see, luckily I was blessed. I don't know what to say at this point of time, but I had wonderful teachers to teach me all the subjects. So like I was like a pretty I was in good hands, I would say. Yeah. So marketing is all about, आप कॉन्सेप्ट समझ लो, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी तो याद करनी पड़ेंगी, ठीक है. स्टेजेस यू नीड टू लर्न, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यू नीड टू लर्न, किसने क्या प्रपोज किया था, हु केम अप विद द थ्योरीज एंड एवरीथिंग. सो मार्केटिंग इज अगेन ईजी. मार्केटिंग भी सब कर लोगे. सॉरी. बात कर लेते बिजनेस कम्युनिकेशन, द सिंपलर सब्जेक्ट. ओके, तो मार्केटिंग में कहना चाहूंगी, जब पेपर अटेम्प्ट करते हो तो टू द पॉइंट लिखना, राइट, एंड अंडरलाइन ईच एंड एवरीथिंग. वो तो मैं आपको हर पेपर में ही कहूंगी. सी सपोज अगर मैं 7 P's की ही बात कर लेती हूँ, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी नॉर्मल, अभी तक आप लोगों ने पढ़ चुका होगा. 7 P's की बात करूंगी तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, पीपल, व्हाटएवर इट इज, फिजिकल एविडेंस, जो भी है. तो आप पहले क्या करो, मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ इट. अब मैं यहाँ पढ़ाने लग गई, बट जस्ट गिविंग यू आइडिया. सो फॉर दैट, सपोज ओके, सो अगर 7 P's है तो यू राइट बीच में 7 P's, ठीक है, एंड देन मेक अ एरो, एंड जो 7 उसके जो है पॉइंटर्स आप वो लिखो, एंड देन एक्सप्लेन देम रैंडमली, ठीक है. तो दैट इज अ थिंग, हाउ यू रिप्रेजेंट योर आंसर शुड बी रिप्रेजेंटेबल. आई मीन अगर कोई आपकी कॉपी खोल के देखे, सो इट शुड बी लाइक, उसको ढूंढना ना पड़े. द पॉइंट शुड कम आउट लाइक, आप जैसे ही देखा कि अगर क्वेश्चन ये है तो उसका आंसर शुड बी डिस्प्लेड इन सच अ मैनर दैट टीचर डजंट हैव टू फाइंड समथिंग कि आपने कुछ लिखा है या नहीं लिखा है रिलेटेड टू द क्वेश्चन आस्क्ड. इट शुड बी कि टीचर का पेन बस ऐसे टिक हो रहा है. So that is the thing, ये marketing के लिए. Business communication is a subject of English where you need to write, right? Again, उसमें भी ये नहीं कि आप कुछ भी बना के, सारे सब्जेक्ट में यही है कि आप कुछ भी बना के नहीं लिख सकते हो. बट बिजनेस कम्युनिकेशन में इफ यू इन्वॉल्व मोर ऑफ अ फ्लो चार्ट, मोर ऑफ अ डायग्रामेटिक फॉर्मेट, दैट वुड वर्क. अगेन मार्केटिंग में भी यही है, उसमें भी कुछ अगर आप क्या बोलते हैं डायग्राम से ज्यादा समझाते हो तो दैट वुड बी मोर बेटर. और बिजनेस कम्युनिकेशन में भी अगेन आप फ्लो चार्ट से बनाते हो या कुछ भी समझाते हो, अंडरलाइन करते हो. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, योर आंसर्स शुड बी इन पॉइंटर्स. कीप योर आंसर्स
to the point, in pointers, and don't make it a paragraph, not at all. Even if अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो कुछ लड़कों को मैंने देखा है, मैंने अपने दोस्तों की कॉपी देख रखी है, क्या करते हैं, लिखते रहते पैराग्राफ में. नो, अगर पैराग्राफ में ही अगर आपको समझ आ रहा है तो उस पैराग्राफ को ब्रेक इनटू लाइक 2 to 4 to 5 पॉइंट्स. अगर आप उसको ब्रेक कर लोगे 2 to 4 to 5 पॉइंट्स में, तो वो भी जो पैराग्राफ आप लिखना चाह रहे हो वो पॉइंटर्स में आ जाएगा. हर सब्जेक्ट में मेक पॉइंटर्स. कोई नहीं बोलता कि ज्यादा भरने से नंबर मिलते हैं. मेरे को ये जो फिलॉसफी है बहुत ही गलत लगती है कि आपने पेपर भर दिया तो आपको नंबर मिल गए. नहीं, अगर आप बकवास लिखोगे तो कोई आपको नंबर नहीं देगा. टू द पॉइंट लिखोगे, व्हाट इज आस्क वही लिखोगे तो नंबर मिलेंगे. अच्छा, ये मैं कैसे कहती हूँ कि अब आ जाते हैं हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में. सो वी हैड सच अ वंडरफुल एंड अ वेरी ग्रेट टीचर फॉर इकोनॉमिक्स एज वेल. सो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच पीपल टेक इट लाइटली कि ये बहुत ही आसान है. आसान नहीं है इकोनॉमिक्स. डोंट टेक इकोनॉमिक्स लाइटली. इकोनॉमिक्स इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, वेरी गुड. अगर समझ आया तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, अगर समझ नहीं आया तो कुछ समझ नहीं आएगा. मीडियोकर इज नॉट द लाइन फॉर द इकोनॉमिक्स. देयर आर सर्टेन टर्म्स, टाइम पर्सपेक्टिव हो गया इसमें, और पता नहीं कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे. अगर वो समझ आ गए अच्छे से, बहुत अच्छी बात है. अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, कॉस्ट, पता नहीं कुछ ऐसे कर करके थे बहुत सारे टर्म्स. तो वही मैं कह रही हूँ कि इकोनॉमिक्स अगर पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ना. खुद से नहीं पढ़ पाओगे, सिर्फ आपको फैकल्टी जो भी टीचर पढ़ा रहा है आप उसी से समझ पाओगे, क्योंकि दीज आर द न्यू टर्म्स टू यू. आप कैसे समझ पाओगे कि कॉस्ट लॉस्ट या जो भी अपॉर्चुनिटी आपने लॉस्ट करी है, किसके बेसिस पे करी है, क्या हुआ है, वो एक सॉरी टर्म्स है. उन टर्म्स को लिंक नहीं कर पाओगे ना तो इकोनॉमिक्स नहीं समझ पाओगे. सो वी हैड अ वेरी लाइक गुड टीचर फॉर दैट, जिसने हमारे सारे टर्म्स को लिंक करवाया, who made economics simpler and easier for us. So be attentive in economics की class. This what I would suggest. और again इसमें भी to the points लिखना, हर पेपर में to the point लिखना, pointers में लिखना. Don't make it a paragraph. Neat handwriting रखना. My handwriting was very poor, very poor. One of the teacher just literally said this on my face, just you come here. So I was like yes. And then she was like, I won't specify, she, that the faculty was that you got these numbers that could have increased or that could have decreased depending upon your handwriting, and your handwriting is very poor. So he literally said this to me, that your handwriting is very poor. ये number जो मिल गए बस तुम्हें मिल गए हैं. So keep your handwriting good, okay? इकोनॉमिक्स की हमने बात कर ली, बिजनेस कम्युनिकेशन, अकाउंट्स एंड स्टैट्स की बात कर ली, कमिंग मार्केटिंग की बात कर ली हमने. कमिंग टू आई थिंक डिजाइन थिंकिंग दैट यू हैव. डिजाइन योर मच्छर. डिजाइन थिंकिंग भी इजी है यार, उसमें भी वही है, कर लोगे, ठीक है, इसमें भी कोई वो नहीं है. कोई सब्जेक्ट में छोड़ रही हूँ क्या? एनीथिंग दैट आई एम लीविंग, आई डोंट नो. Okay, so MCOB की बात कर देते हैं. MCOB is again a good subject. MCOB में भी कुछ who discovered what are the principles and everything. कुछ चीज़ें तो आपको as it is याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ अगर चीज़ें बनी है, साइंस स्टूडेंट might know, कुछ चीज़ें अगर किसी ने डिस्कवर करी है तो उसको आप किसी की डिस्कवरी को चेंज नहीं कर सकते हो, राइट? सो everything depends upon how you represent your answers, how effectively you write them. When needed, use diagrammatic representation, flow chart, putting arrows elsewhere, coming up with the answer, everything in a pointer, not in a paragraph. Come up with that. That's a effective and a efficient. ये दो words है, पूरे MBA use करने वाले हो. You people would be using these two words. बहुत ही effectively and efficiently you come up with your answers. That is something that would drive teachers crazy and will allow them to give you numbers. That's the thing, right? So मैंने ये चीज़ें फॉलो करी थी. जो क्लास में ध्यान देना था मैंने वो सारी क्लासेस में ध्यान दिया. इनफैक्ट मैंने सारी क्लासेस में ध्यान दिया, राइट? और अगेन पढ़ना ज़्यादा नहीं होता है क्लास में, बस ये पता होना चाहिए देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो टीचर्स फोकस करेंगे.
कि दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग यू शुड नो, तो दैट इज ऑन यू. अगेन, अनलेस यू यूज योर इंडिविजुअल ब्रेन्स यू वोंट मेक इट. नोबडी टेल्स यू लिख के कि ये इंपॉर्टेंट है बेटा इसे पढ़ लो, ये आने वाला है इसे पढ़ लो. नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टीचर अगर किसी चीज पे एम्फसाइज कर रहा है, किसी चीज को बहुत अच्छे से समझा रहा है या पढ़ा रहा है, तो मे बी दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो यू नीड टू मेक दिस हैपन. और अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? यू नीड टू यूज योर ब्रेन्स. ब्रेन्स मिला है उसको यूज तो करना ही पड़ेगा ना. जस्ट डोंट कीप इट फॉर लाइक, कब यूज करोगे? अभी नहीं तो कब? ठीक है. ऑल्सो नोट्स, पीपल वर आस्किंग फॉर माई नोट्स. तो अब ये चीज समझ लो, नोट्स इज समथिंग दैट यू मेक ऑफ योर ओन. Even if I give my notes to you, you won't understand it because that is something that I have made in like the language I prefer, the things I prefer. My notes are sometimes like, अगर किसी ने एक पैराग्राफ समझाया है सपोज, तो मेरे नोट्स में शायद वो मैं पैराग्राफ में ना लिख के उसको मैं 2 वर्ड्स में सम अप कर दूं. अब वो 2 वर्ड्स का मीनिंग क्या है, दैट ओनली आई वुड नो बिकॉज दोज नोट्स बिलोंग्स टू मी, not to anybody. So I prepared that notes for myself. So like I would understand them better than you would, right? तो notes अपने बनाओ. आपको PPT मिलेगी कॉलेज से, PDFs मिलेंगे आपको कॉलेज से. You have to see how you make notes of it. या नोट्स नहीं बनाना है तो भी चलेगा. देयर आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो बस PDF पढ़ के आ जाते हैं एंड आंसर्स बहुत अच्छे से फ्रेम कर लेते हैं. दैट इज ऑल्सो द थिंग. कुछ सब्जेक्ट में तो बिजनेस कम्युनिकेशन के मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए. इट वॉज जस्ट द क्लास, द टॉपिक्स एंड यू जस्ट राइट इट देयर. मार्केटिंग के भी नोट्स बनाए थे मैंने, इकोनॉमिक्स के बनाए थे थोड़े बहुत. सो दैट यू नीड टू डिसाइड. ठीक है. पेपर सिंपल आता है, द पॉइंट आता है. कभी कभी थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को मोल्ड कर देते हैं जस्ट टू सी योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक, राइट? बट नो नीड टू वरी. पेपर बहुत अच्छा आता है. सी, अगर आपने क्लासेस करी अटेंटिवली तो आपके नंबर कहीं नहीं गए. यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. ओके. ऑल्सो these are the things that I followed. Hope this video was helpful for you. Anything else you want to know from my side, I would be very happy to help you out, guys. Also, अभी मेरा भी सेशन आ रहा है. I didn't even attend any classes. So what's gonna happen? Let's see what's gonna happen. ठीक है. तो अच्छे से दो. All the best to everybody. Enjoy your life. Worry less. स्ट्रेस नहीं लेना होता चीजों का. ठीक है. पढ़ाई अपने आप हो जाती है. बस ये है कि जब जिस चीज के लिए टाइम अलॉट करते हो, कीप इट फॉर दैट ओनली. नो डिस्ट्रैक्शन. इफ यू अगर आपको है कि मुझे 1 से 2 घंटा पढ़ना है, पढ़ लो बस. उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू स्टडी द एंटायर डे. आई डोंट गेट द कंसेप्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग एंटायर डे फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अगर आप मल्टीपल चीजें करो दैट्स गुड, वेल एंड गुड. बट अगर आप एक ही चीज को ड्रैग करो फॉर द 6 hours एंड डूइंग नथिंग आउट ऑफ इट, दैट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो लग के 1-2 घंटे दो, पढ़ लो एंड दैट्स ऑल. नो नीड टू वरी. सब आराम से हो जाएगा. राइटिंग अच्छी रखना, पॉइंटर्स में लिखना और अच्छे से करना. दैट्स ऑल. एंड एनीथिंग मोर यू वांट टू नो फ्रॉम माय साइड, जस्ट ड्रॉप द टेक्स्ट डाउन. और जैसे ही वो, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द, जैसे कुछ जीजस करके, या आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम, जिससे मुझे वीडियो बनाने को कही थी. सो दिस इज फॉर यू एंड एवरीबडी हु कुडंट आस्क मी आउट बट वांटेड टू नो समथिंग अबाउट इट. तो मैंने बना दी है, देखो इसे. एंड अगेन आई डिडंट से कब से, बट आई विल से इट अगैन. अगर आपको पसंद आता है द कंटेंट आई पुट, ओ गॉड माई थ्रोट इज पेनिंग सो मच बिकॉज ऑफ लाइक खांसी. कुछ भी पसंद आता है, लाइक द वीडियो. देर आर पीपल हु डोंट लाइक इट, जस्ट वॉच इट एंड गो. बट इट्स ओके. यू कैन नॉट जस्ट ask people to like it if they don't want to like it. So it's like I don't care. Subscribe करना है आप कर लेना. And anything else you want me to make, then please write it down, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या you want to know. ठीक है. So all the best guys. Take care. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. दिवाली अच्छे से इंजॉय करके आना. ठीक है. अच्छे से इंजॉय नहीं करोगे तो अच्छे से, अच्छा ठीक है. तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ. सो आई हैव दिस, आई ट्रीट माई सेल्फ लाइक इफ आई हैव अ टास्क टू डू. सो व्हाट आई डू इज, अगर आस्था यू फिनिश दिस टास्क, आस्था यू विल गेट अ ट्रीट ऑफ दिस. सो अनलेस यू ट्रीट योर सेल्फ, सो मोटिवेटिंग फैक्टर ना हमेशा होना चाहिए, राइट?
सो ये करना कि सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड करो। तो अभी तुम सबका मोटिवेटिंग फैक्टर, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो आई वुड हैव मेड दिस अ मोटिवेटिंग फैक्टर कि मैं दिवाली तक, जब तक तुम्हारी छुट्टियां हैं, दिवाली से जो पहले, जब तक जितने दिन तुम कॉलेज जा रहे हो, हर क्लासेस में अच्छे से अटेंड करूंगी, राइट। फिर दिवाली अच्छे से मनाऊंगी और फिर एग्जाम अच्छे से दूंगी, ठीक है। कुछ भी, सब कुछ फुल फ्लेज करना, कुछ भी बीच में मत छोड़ना, ठीक है। कि अभी तुमने क्या किया कि क्लासेस नहीं करनी क्योंकि दिवाली आ रही है, तो क्लासेस भी नहीं कर पाए। फिर दिवाली में तुम सोच रहे हो यार एग्जाम आ रहे हैं तो दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाए। फिर एग्जाम्स में तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये तो तुम्हारा लाइक डिसअपॉइंटमेंट हो गई। तो अभी मेक अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स कि अभी मैं क्लासेस अच्छे से अटेंड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, फिर दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कर लूंगा या कर लूंगी, फिर एग्जाम्स अच्छे से दे लूंगा या दे लूंगी, ठीक है। आई मीन व्हाटएवर, ठीक है। तो ये चीजें दी। सो आई डोंट नो, ये आइडियोलॉजी मैं फॉलो करती हूँ, दैट आई कीप motivation or some perks and benefits or rewards for myself so that I will come up with like flying colors and do good। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास, if you know, कोई एडवेंचर करने क्यों जाता है या कोई ट्रिप पे क्यों जाता है, बिकॉज दे हैव दिस कि अगर मैं वहां XYZ प्लेस जाऊंगा तो शायद मुझे वो देखने को मिलेगा, मैं XYZ चीजें करूंगा तो शायद मुझे वो चीज मिलेगी। सो इफ यू हैव अ सर्टेन गोल, यार मच्छर, सो इफ यू हैव अ सर्टेन गोल या रिवॉर्ड, तो आप उसके लिए फिर आपकी जो मेहनत है दैट मल्टीप्लाइज। ओके, सो दिस वाज इट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय गाइज, enjoy Diwali, happy Diwali to everyone। अभी से ही बोल रही हूँ because I don't know when I'm recording next। Happy Diwali, bye bye।